Good evening, dear kids. Today I am taking your new topic, that is midpoint and its converse. Okay, it's a chapter number 12. Let's start with what do you mean by midpoint theorem. Midpoint theorem क्या होता है? Let's see. If I have a triangle, the line segment joining the midpoints of any two sides. So if I have these as midpoints, and if I am drawing a line segment joining these two midpoints, and this is parallel to this line, the base of triangle, then this, I'll name this as triangle ABC, and this I'll name it as PQ. So PQ will be parallel to BC and PQ will be half of BC. गेटिंग माई पॉइंट. तो कभी भी अगर आपका एक ट्रायंगल है, आप किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो बन जाता है थर्ड साइड के पैरेलल और वो बन जाता है थर्ड साइड का आधा, दैट इज हाफ. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके, शैल वी स्टार्ट आवर प्रॉब्लम नंबर 1. लेट्स सी व्हाट इट सेज. Problem number 1 says we have a figure. AB is given as 8.4. So this is your 8.4, my dear kids. PR is given as 5. So let's put PR as 5. Okay, then you have PQ as 4.8. So I have given PQ as 4.8. Find the length of BC, AC and QR. See, my dear kids, if AB is 8.4, so RQ will be half of 8.4. Why? Because R and Q are the midpoints of AC and BC. And if I am joining a segment through the midpoints of two sides, then it will become parallel to the third side and it will be half of the third side. So you can directly write, by midpoint theorem, RQ is half of AB. So RQ will be half of AB's measurement, that is 8.4. तो आपके पास 4.2 सेंटीमीटर RQ की मेजरमेंट आ गई. नाउ यू हैव टू फाइंड BC. BC अगर आप देखोगे तो BC के ऑपोजिट जो PQ है, अगेन सॉरी PR है, सो वी कैन राइट PR इज हाफ ऑफ BC. PR का मेजरमेंट आपको 5 दिया हुआ है, विल बी हाफ ऑफ BC. ये 2 अगर आप यहाँ पे लेकर गए तो BC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर. करेक्ट. देन वी हैव द थर्ड साइड, दैट इज PQ. PQ का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 4. करेक्ट. एंड AC अगर आप देखोगे उसके ऑपोजिट थर्ड साइड है और P और Q मिड पॉइंट्स हैं. अगर आप मिड पॉइंट से एक सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हो तो वो हो जाता है थर्ड साइड के पैरेलल और थर्ड साइड का हाफ. सो कैन आई से PQ इज हाफ ऑफ AC. PQ की वैल्यू आपको दी हुई है 4.8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये 2 को अगर आप यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, 4.8 इंटू 2 विल बी वैल्यू ऑफ AC. सो यू गॉट ऑल द 3 वैल्यूज. नेक्स्ट वी हैव in a triangle ABC, D is a midpoint of AB and E is a midpoint. तो D और E आपके AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं. अगर मैं एक सेगमेंट ज्वाइन कर रही हूँ DE, तो वो बन जाएगा पैरेलल AC के और DE विल बी हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर? तो आप लिख सकते हैं ऊपर से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE इज हाफ ऑफ AC. Correct. Now AC is given to you as 6.4. So put the value of AC as 6.4 and from there you will get the value of DE. Correct? Easy? Yes. Now the other point is, whenever you are joining the segment, joining midpoints, this is a segment you are joining, that will be parallel to the third side. Can we say that DE is parallel to AC by midpoint theorem? Yes. So if it is parallel, so can I say these two angles which I am putting marked with purple are corresponding angles? Yes. So if I give you the value of ACB as 63, what will be value of DEB? That will also be 63 because these are corresponding angles. So you can write angle DEB is equal to 63 degree bracket. You can write corresponding to angle ACB. Clear? Next we have in triangle ABC. So I will draw a triangle for you and I'll name it as ABC. M is a midpoint of AB. We'll put M as midpoint of AB
एंड अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू M पैरेलल टू BC। एक स्ट्रेट लाइन हम M से ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है BC से। ओके, कट्स एट N। अच्छा, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम है उसी तरीके से हम लोग का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट भी है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक लाइन एक मिड पॉइंट से आप एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो और वो पैरेलल है आपके थर्ड साइड से, तो जहां पे वो आपके सेकेंड साइड को टकराएगा दैट विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट। ठीक है, सो ये आपका हो गया कॉन्वर्स, उल्टा। मतलब आपको एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और वहाँ से एक लाइन निकल रही है जो कि पैरेलल है थर्ड साइड से, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। तो बाकी जहाँ से वो पॉइंट निकल रही है माय डियर, जहाँ से वो सेगमेंट निकल रहा है और वो सेकंड साइड को जहाँ पे हिट करेगा दैट विल ऑल्सो बिकम द मिड पॉइंट। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्लियर? तो अगर M मिड पॉइंट है, M यहाँ की मिड पॉइंट है और वहाँ से जो सेगमेंट आ रहा है वो पैरेलल है BC के, तो N ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाता है। आपके प्रॉब्लम में नहीं भी दिया जाएगा बट N विल बी द मिड पॉइंट। सो यू कैन राइट बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम N will also be the midpoint. And once you got N as a midpoint, let's see what it is given. You have to find length of AN. आपको AN फाइंड करना है, MN फाइंड करना है, BC आपको 7 दिया हुआ है, AC आपको 5 दिया हुआ है। अब जैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि N मिड पॉइंट है तो ये तो समझ में आता है कि ये पूरा 5 है तो ये 2.5 और ये 2.5 होगा। मतलब AN की वैल्यू आपके पास आ गई 2.5। क्लियर? क्योंकि N मिड पॉइंट है, सो AN यू गॉट 2.5। नाउ नेक्स्ट इज BC आपका 7 है और M और N आपके मिड पॉइंट्स हो गए हैं ऑलरेडी, वहाँ से पैरेलल भी हो गए हैं, तो MN विल बी हाफ ऑफ BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यस, सो MN विल बी हाफ ऑफ BC। तो MN की वैल्यू आपकी आ जाएगी BC का आधा और BC आपको दिया हुआ है 7, सो MN विल बी 3.5। Let's take with next. Now here the following figure shows that it's a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC। ये लाइन और ये लाइन आपके पास में पैरेलल है and P is a midpoint of AD। ये P आपका मिड पॉइंट है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये दो लाइंस आपके DC and AB are parallel to each other। आपको प्रूव ये करना है। ओके, नाउ लेट्स गो इन वन ट्रायंगल एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। नाउ PR इज ऑल्सो पैरेलल, ये आप निशान देख रहे हैं, सो PR इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। नाउ आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल ADB। P is a midpoint which is given in the problem और P से जो लाइन आ रही है वो पैरेलल है AB से, because PR completely is parallel, so I can write PQ is parallel to AB and P is a midpoint. So by converse of midpoint theorem, Q becomes a midpoint. Therefore can we say DQ is equal to QB? ठीक है, now what I'll do is, now I'll go in triangle DBC। Q is a midpoint, अभी अभी हमने किया है यहाँ से, and QR is parallel to DC। So by converse of midpoint theorem, you can say that R is a midpoint। Got my point clear? So you got R as a midpoint. Now my dear kids, what you can do is, इस ट्रायंगल में अगर जाएंगे PQ पैरेलल है AB के और P और Q मिड पॉइंट हैं दोनों, तो कैन आई से दैट PQ इज हाफ ऑफ AB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और यहाँ से आपने प्रूव किया Q इज अ मिड पॉइंट एंड ऑल्सो R इज अ मिड पॉइंट, आपने प्रूव किया है। सो कैन आई से QR इज हाफ ऑफ DC। QR आपका इस ट्रायंगल से आ रहा है DBC, तो कैन आई से QR इज हाफ ऑफ DC। यस, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। नाउ यू कैन ऐड इक्वेशन 1 and 2।
So what you will get is PQ plus QR. Always remember to add left hand sides together. And you have to add half AB plus half DC. अब आप चाहें तो PQ plus QR will be PR. हाफ को कॉमन निकाल दो एंड AB plus DC को अंदर रखो. So you got your required part. Got my point clear? I'll just erase the diagram. मैंने जो overwrite किया है, overdo किया है, उसको erase कर रही हूँ ताकि आपको diagram फिर से clear हो जाए. First I have taken this triangle. By converse of midpoint theorem मैंने Q को midpoint बनाया. फिर मैंने ऊपर वाला triangle लिया और R को midpoint बनाया. अब मैंने midpoint theorem से कहा कि P और Q अगर दो midpoints हैं और कोई भी segment अगर दो midpoints को join करती है तो वो जो सेगमेंट है वो पैरेलल हो जाता है उसके बेस थर्ड साइड के साथ और हाफ हो जाता है. सो आई विल से पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए बी. दैट वॉज माई इक्वेशन 1. एंड फिर मैंने किया क्यू और आर को मिड पॉइंट करके मैंने कहा क्यू आर इज़ हाफ ऑफ डी सी. दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2. एंड बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 आई गॉट माई रिक्वायर्ड आंसर. इज दैट क्लियर? Okay, so in that case we got a theorem, new concept that whenever you have a trapezium and the midpoint of trapezium is there, so can we directly write that अगर ये trapezium है और अगर ये midpoints हैं तो अगर मैं इनका segment join कर रही हूँ और इसको नाम दे रही हूँ suppose PQ और इसको नाम दे रही हूँ AB, इसको नाम दे रही हूँ CD, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ PQ इज़ हाफ ऑफ AB प्लस CD. अभी हमने प्रूव किया है उसको, तो वी कैन यूज़ दिस. तो हम लोग को ये पता चल गया कि ट्रेपेजियम में हम लोग जो मिड पॉइंट्स का सेगमेंट ज्वाइन करते हैं दैट विल बी इक्वल टू हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो आई कैन राइट हियर MN इज हाफ ऑफ AB प्लस DC. येस और नो? सो इट्स एवरीथिंग इज गिवन. नाउ यू हैव जस्ट प्रूव दिस पॉइंट ना, उसको अप्लाई करना है. अब यू हैव टू फाइंड MN इफ AB इज 11, तो आप AB की वैल्यू 11 डाल दो और CD की वैल्यू 8 डाल दो. सो यू गॉट हाफ ऑफ 19. कैलकुलेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ MN. तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में आपको AB फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, सिर्फ वैल्यूज चेंज करते जाना है. आपको AB फाइंड करना है. MN इज गिवन एज 27, AB यू हैव टू फाइंड एंड CD इज गिवन एज 20. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेक दिस 2 देयर एंड मल्टीप्लाई. And then you can take this 20 there and you do the subtraction and you will be ready with your answer for AB. Clear? Similarly you have part 3. तो आपको ट्रेपेजियम की भी एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि अगर हम लोग ट्रेपेजियम बना रहे हैं और उसके दो नॉन पैरेलल साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट ले रहे हैं, सपोज ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स हुए. अगर ये मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो उसका मेजरमेंट क्या होगा? उसको सपोज मैंने नाम दे दिया MN और ये जो ट्रेपेजियम है उसको नाम दे दिया ABCD. तो MN का मेजरमेंट क्या होगा? MN विल बी हाफ ऑफ AB प्लस CD. गॉट माई पॉइंट क्लियर? ओके. Next we have the diagonals of quadrilateral intersect at right angles. Prove that the figure obtained by joining the midpoints of the adjacent sides of the quadrilateral is a rectangle. तो इसका फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है. ये क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा. ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स तो मैंने नाम दे दिया S, R, Q और यहाँ पे P. PQRS मैंने मिड पॉइंट्स नाम दे दिए और बाहर के क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दिया ABCD. द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे हैं. ये कंडीशन दी हुई है आपको बताना है. प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स. अब मैंने मिड पॉइंट्स तो ड्रॉ कर दिए, अब उसको ज्वाइन भी कर दो. जैसे ही मैंने फिगर ज्वाइन किया तो यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ रेक्टेंगल. मतलब आपको प्रूव क्या करना है कि PQRS रेक्टेंगल है. शैल वी स्टार्ट? ओके, नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर. अगर आप देखेंगे तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स दिया हुआ है. अगर P और Q मिड पॉइंट्स है तो क्या मैं लिख सकती हूँ? PQ इज पैरेलल टू AC. एंड क्या मैं लिख सकती हूँ? PQ इज हाफ ऑफ AC. यस, ध्यान से देखो, ट्रायंगल में बन रहा है वो PQ और ये AC.
ठीक है, ये ट्रायंगल आपका ABC, उसमें PQ मिड पॉइंट्स हैं और मैंने कहा था कोई भी सेगमेंट अगर आपके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ट्रायंगल के दो सेगमेंट और ज्वाइन करके जो थर्ड साइड होता है उसके पैरेलल हो जाता है और उसका हाफ हो जाता है. सो कैन आई राइट PQ इज हाफ ऑफ AC. सिमिलरली अगर आप ध्यान दोगे तो S और R जो हैं वो भी मिड पॉइंट्स हैं DC और AD के, और अगर मैं SR ज्वाइन कर रही हूँ तो SR विल बी पैरेलल टू AC and SR will be half of AC. Correct? So you got two things here. One thing is saying that PQ is parallel to AC. Other thing is saying that SR is parallel to AC. So can I say PQ and SR आपस में parallel हैं? And your second thing is saying that PQ is half of AC. And here I am saying that SR is half of AC. So can I say PQ is equal to SR? तो ये तो बात प्रूव हो गई that PQ जो आपका है PQ and SR आपस में पैरेलल हैं and they are also equal. And you know very well that the two opposite sides of quadrilateral अगर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है, तो उसके पैरेललोग्राम होने के भी चांसेस हैं, उसके रेक्टेंगल होने के भी चांसेस हैं. अब दूसरी बात देखो कि अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स उसके, आपको एक और कंडीशन दी गई थी कि जो आपके डायगोनल्स हैं BD और AC वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है. अगर ये कंडीशन है तो आपका जो ये आउटर स्ट्रक्चर PQRS बना है वो भी रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इसका भी 90 डिग्री हो जाएगा. और अगर एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में फ़र्क देखें तो यही फ़र्क है कि ऑपोजिट साइड्स तो सेम रहते हैं और इक्वल रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, बट हियर इन पैरेललोग्राम इट इज़ नॉट 90 डिग्री, बट हियर इन रेक्टेंगल दिस इज़ 90 डिग्री. Correct? So we have to go for that it is a rectangle because it has a corner angle which is 90 degree. Got my point clear?